तब तभी तब तब तभी तब तब तभी तब वो सक लू सक सक पता नहीं ये रमजान आया रोज रखो जी नीकी से अबू जोली बरो जी छोड़ो ना बीमारी का बहाना करके तौबा करो तौबा करो नूर हूर तौबा करो तौबा नो मोर गाने अस्तगफिरुल्लाह ओके वी आर बैक लाइव एंड इन स्टीरियो सर व्हाई डू यू साउंड लाइक नासिर खान जान ऐसा वेरी टेक्निकल कंपैरिजन थोड़ा बहुत दिमाग लड़ा लिया खदीजा आपने ये कंपैरिजन करके ही इज एक्चुअली गुड फ्रेंड गुड फ्रेंड तो क्या उससे 4-5 वीडियोस बनाई हैं दोस्तों के लिए सर मिसिंग यू आई मिस यू टू सैफ वी ऑल मिस यू इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही इज़ योर फ्रेंड क्यों इसमें क्या बड़ी बात है सर हूर से नूर बना दिया और जल्दी no comments. Okay. Acid, bases, and salts, chapter 10. Let's start because we got the most number of votes on this poll. So I feel like you guys were not that well versed in acid, bases, and salts because everybody is spamming me in DMs as well. Sir, please acid, bases, and salts कराएं. Please. पता नहीं इसमें आपको क्या नहीं आता है तो simple बातें हैं. But then again, we will again do it for your sake and we will make sure that you guys practice. Yeah, and then we'll get going. Sir, Saleha कह रही है शुरू कर दें. Okay, Shameen. Acid, bases, and salt is Dale Steen. Who's Dale Steen? I don't know. Okay, let's start. अच्छा चलिए बातें बहुत हो गई. Okay. Question 6 is the catalyst in method 2. We don't know what method 2 is because obviously it's connected to BA and BA are not right here because I've pinpoint every single question and I've added it to the topical past papers, right? So forget about what method 2 is for now. Just focus on the question, right? So it says the catalyst in method 2 is phosphoric acid. Dilute phosphoric acid is a weak acid. What do we mean by weak acid? Weak acids are those acids which partially ionize in an aqueous solution, right? So it says what is meant by the term acid. What is an acid? Acid is a proton donor, right? So I can say acid is a proton donor. Let's go, sir. And then it says state the meaning of the term weak in weak acid. Now it's saying just mention the meaning of the term weak in weak acid. Don't tell me what a weak acid is, just tell me what weak means, right? So if you just look at the term weak in weak acid, that means partial ionization or partial dissociation, right? So you could say that weak means partial ionization, partial TIAL ionization, or you could say partial dissociation. हैं जी खत्म Acha, now the next question says this question is about lead chloride. For just for you guys, can you guys tell me what lead chloride actually is? As in which type of salt is it? Is it a soluble salt, an insoluble salt? What type? It's not a soluble salt. You are wrong. Yes, it's an insoluble salt. How do you know lead chloride is an insoluble salt? You need to know your NAGSAG rules. How do you know lead chloride is an insoluble? Remember, all chlorides are soluble except for LMS, lead, mercury, and silver. So lead chloride is an insoluble salt. And how do you prepare an insoluble salt? Well, we need to take two soluble salts of lead chloride. So I would take lead nitrate because I know all nitrates are soluble. And sir, I would take for the chloride, I'd probably take, NaCl or KCl because all chlorides are soluble except for LMS. So take any chloride except for LMS, right? And then what I do is I add these two aqueous solutions, right? So I add them to water and make aqueous solutions out of them. So if I add them to water and make aqueous solutions out of them, I'd get lead 2 plus ions, I'd get nitrate ions right here, I'd get the sodium ion, and I'd get the chloride ion. Right? This is what will happen if I add them to water. And then I just mix these two solutions together. So if I mix these two solutions together, I'm teaching you how to prepare an insoluble salt. Then I need to mix these two solutions. So when I mix these two solutions, I'd get a lead 2 plus ion, a chloride ion, a sodium ion, and obviously a nitrate ion in one particular beaker in one solution. And what will happen is whenever the lead ion comes into contact with the chloride ion, it's gonna form a precipitate.
it's gonna form a beautiful solid. It's gonna precipitate, right? And then what's gonna happen is you're gonna have this beautiful solid of lead chloride, and you'd have sodium nitrate as the aqueous solution. So how do you separate a solid from the aqueous solution? How do you separate a solid from the aqueous solution? You literally filter it out. So once you filter it out, you realize that lead chloride would be obtained as a residue, sir. So lead chloride is my residue, right? But you'd notice that once you filter it out and you have this beautiful lead chloride right here, it would still have, and sodium nitrate would be obtained as your filtrate, right? But we don't care about sodium nitrate. We care about lead chloride. So once you have this beautiful lead chloride, you'd notice that there are a few small traces of sodium nitrate on it, right? Because it was, जैसे आप एक स्विमिंग पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल से बाहर निकल के क्या होता है, you are wet, you have those water droplets on you. So if you take a solid out of this beautiful solution, you'd realize that it'll still have some traces of sodium nitrate. So then what am I going to do? I'm going to pour distilled water through the filter funnel, right? So I will pour distilled water through the filter funnel to remove any traces of sodium nitrate. And once I do that, you would get pure lead chloride, but it would still have water droplets on it. The distilled water that you used, or the deionized water that you used, it'll still have, a few droplets of that on lead chloride. So what do you need to do? You need to either gently tap it or sandwich it between two filter papers to dry it, or oven में ड्राई कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है? So this is how you obtain an insoluble salt, or prepare an insoluble salt. How do you prepare an insoluble salt? You take two soluble salts, identify two soluble salts. So इसके positive ion का एक soluble salt और negative ion का एक soluble salt. Then you add them to water to make two solutions. Then you mix the two solutions together, and the insoluble salt will precipitate right here. And then you'd still have an aqueous solution, sir. और ये aqueous solution को फिर हम filter करते हैं, but you'd realize that there will be a few traces of sodium nitrate on it. So I wash it with distilled water, or pour distilled water through the filter funnel, and then it'll still be a little wet with the water droplets on it, and then you literally just dry it by gently sandwiching it between two filter papers. Done, sir. So now let's look at the question. It says, if you know all of this, if you know all of this stuff, all these questions will be a piece of cake. If you know your solubility rules and you know how to prepare salts. So it says, identify two soluble salts for making lead chloride when mixed together. What are the two soluble salts, sir? I will use lead nitrate. You could either write the name for it, or you could write the formula for it, right? Because he's not saying specifically to write the name or write the formula. He's just saying identify. So I'd write the formula, right? So I'd say lead nitrate, and I'll take sodium chloride. You could take potassium chloride, whichever chloride you want, as long as it's not LMS, because you need two soluble salts, right? Then it says, write the ionic equation for the formation of lead chloride by mixing these two aqueous solutions. So when you mix these two aqueous solutions, the ionic equation is always the change. जिधर change आता है, that's the ionic equation. Because remember, ionic equation is that equation without the spectator ions. What are the spectator ions? The ions that don't take part in the reaction. So the sodium ion and the nitrate, I did not take a part. It was nitrate, sodium, nitrate ion, sodium ion, and it remained the sodium and nitrate ion. They did not do anything. But what you realize, on the other hand, is the lead ion and the chloride ion, they changed from aqueous ions to a solid precipitate, right? So that's the change that took place. So I'm going to say, hey, you had the lead 2 plus ion, which is aqueous. You had the chloride ion, which is aqueous. And it gave me my beautiful lead chloride. And what's the formula for lead chloride? Sir, for lead makes an ion of 2 plus. It's denoted here by the oxidation number. And chloride has a charge of 1 minus. How many chloride ions do you need for one lead ion? That's 2 chloride ions. So what should be the formula? It should be PbCl2. Or what you could just say, lead के ऊपर 2 plus है, chloride is 1 minus, cross multiply, you get PbCl2, which is a beautiful solid, right? And then, sir, I took magnesium chloride and sodium chloride. Why? Lead किधर गया? If you took magnesium chloride and sodium chloride, you want to prepare lead chloride, तो lead किधर गया? मतलब सही है. And you realize that it's not a balanced equation, right? देखिए, for one lead ion, how many chloride ions do you need? You need 2 chloride ions, right? That's why the formula even is PbCl2. खत्म. अच्छा, मजे की बात है, एग्जामिनर देखिए, एग्जामिनर ने आपको फॉर्मूला भी सही नहीं लिख के दिया, PbCl, क्या आप ऊपर से छाप ना लें. एग्जामिनर भी माइंड गेम्स खेल रहा है.
Acha, list the steps the student should take in preparing a pure sample of lead chloride from the mixture in the beaker. What are the steps that he should take from the mixture in the beaker? This mixture right here. He's talking about this mixture in the beaker. This is the mixture that forms, right? This is the mixture. अब इसके बाद क्या steps वो लेता है? इसके बाद क्या steps लेता है? First of all, he filters it out and then he washes the residue using distilled water and then he dries it by, either putting it in an oven. You're right, either putting it in an oven, or I'd like to say that dry the residue by gently tapping it between two filter papers. ठीक है जी? तो I'd say, hey, first of all, what he's gonna do is he's gonna filter the mixture. मुफ्त के मार्क्स हैं यार, इसमें क्या मुश्किल है? He's gonna filter the mixture, then he is gonna wash the residue, और इधर मैं लिख लेता हूँ PbCl2 is obtained as residue. Yes, sir. And wash the residue with what? With distilled water or deionized water. क्योंकि अगर टैप वाटर से धोएंगे उसके ऊपर तो फिर भी आयंस होंगे ना, तो with distilled water, or you could say deionized water, and then you gently dry it by tapping it between two filter papers, or you could put it in a warm place or in an oven. It's your choice. मुझे ये डिस्क्रिप्शन अच्छी लगती है. कैन वी यूज अ टावल टू ड्राई? नो, क्रिस्टल्स आर वेरी 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 जेंटल. तो टावल के साथ तो इसका चूमन है, और टावल के ऊपर इम्प्योरिटीज भी होगी. सर अगर सॉल्यूबल सॉल्ट बताना हो तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सालिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट. सॉल्यूबल सॉल्ट बन रहा हो तो यस बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा अगर आप इसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ धो रहे हो, बिल्कुल. एंड लिटमस पेपर, लिटमस पेपर किधर से आ गया? अच्छा, नेक्स्ट. In the second stage, nitric acid is produced. Balance the equation. Okay, this is a very beautiful question, right? Sir, chlorine to group 7 में है, so won't it already be Cl2? There's a difference. Cl2 is chlorine, Cl1 minus is the chloride ion. So there's a difference between chlorine and a chloride ion. Chlorine is a diatomic molecule and chloride ion is the negative ion that it forms when there's a transfer of electrons, right? We have to dry soluble substance. Dry तो आपने हर चीज को करना है ना. Acha, in the second stage, nitric acid is produced. Balance the. Now, you need to understand that balancing is very simple. मैं आपको एक आसान trick बताता हूँ. These are redox reactions and balancing redox reactions is taught in A levels, right? O levels में आपको क्या पढ़ाते हैं? O levels में आपको रट्टा थोड़ा सा सिखाते हैं और trial and error सिखाते हैं कि ये देखें इधर N है और इधर N है. So whatever you write here, you must write it here. You need to write whole numbers on both ends to balance this equation, because if you write 2 here, then it probably will be 2 here, because nitrogen atoms need to be balanced at all times. But I don't teach it like this. मैं क्या कहता हूँ? मैं आपको कहता हूँ use mathematics, right? Use mathematics. I'd say write the equation for yourself again. These equations, balancing these equations is a little difficult, but I've taught this balancing in my life classes as well, right? लेकिन बहुत आसान बन जाते हैं. क्यों? You just need to use your brain. What I'm going to do is I'm going to look at the oxygen और मैं कहूँगा यार I can play around with the oxygen at the end. Why? क्योंकि देखिए ऑक्सीजन इज अलोन. तो मेरा टिप हमेशा बच्चों को ये होता है कि जो चीज अकेले होती है, अकेले मौजूद होती है, नॉट बॉन्डेड विद अदर एटम्स, इट्स जस्ट O एटम्स और Cl2 एटम्स, कीप दैट एट द एंड एंड बैलेंस दैट थिंग एट द एंड. दिस विल हेल्प यू. क्या मतलब है इसका? देख लें. नाइट्रोजन इज वन ऑन द लेफ्ट, नाइट्रोजन इज वन ऑन द राइट. दैट्स गुची. वी आर बैलेंस्ड. आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, राइट? Then I'm not going to look at the oxygen. I look at the hydrogen. Hydrogen is 1 on the right and it's 2 on the left, right? अब मैं right को नहीं छेड़ रहा, क्योंकि if I start to mingle on the right side, then I'd have to shift the nitrogens again. फिर तो nitrogen भी बदल जाएंगे. Whereas I said that nitrogen is Gucci. So I'm not gonna mess around with this hydrogen. I'd mess around with this hydrogen right here. तो मैं इस 2 hydrogens को 1 की equal बनाऊंगा. On the right you have 1 hydrogen, here you have 2. तो 2 को किससे multiply करूं कि 1 आए? X is equal to 1 over 2, right? 2 is multiplying on the left, so it will divide on the right, right? Yeah, divide by 2 on both sides, जैसे भी आपने पढ़ा है. So this is 1 over 2. Now, nitrogen is balanced, 0.5 नहीं लिखना. हाँ, 1 over 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. अब सुनिए सुनिए, nitrogen is balanced, hydrogen is balanced. Now balance the oxygen. Now look at this. You have 3 oxygens on the right. You have 3 oxygens on the right. You already have 1 oxygen here and you have half oxygen here. So you already have 1.5 O on the left, right? एक oxygen ये और 1.5 ये. So you have 3 oxygens on the right
and you only have 1.5 oxygens on the left. मुझे कितने चाहिए? मुझे 3 चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 1.5 है, तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? What should I multiply this 2 with to get 1.5? हाँ जी, what should I multiply this 2 with to get 1.5 is effectively 3 over 2. कैलकुलेटर में 1.5 दबा के इक्वल दबाएं तो आपको शो कर देगा 3 over 2 आता है, right? I only need 1.5 more O's. You already have 1.5 here, on the right you have 3. 1.5 ऑलरेडी इधर मौजूद है, तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 1.5 ले लूं? क्यों? 1.5 है, इससे अगर 1.5 आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, राइट? सो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 over 2 है? 2 is being multiplied on the left, it divide on the right, so that's 3 over 4. That's 3 over 4. अब सर ये आपने पेंसिल के साथ किया, अब आपके एग्जामिनर कहता है आई डोंट लाइक फ्रैक्शंस, ऑल्दो इन ए लेवल्स यू कुड राइट फ्रैक्शंस एज मच एज पॉसिबल, बट इन ओ लेवल्स एग्जामिनर कहते हैं नहीं फ्रैक्शंस ना लिखो, मुझे होल नंबर्स दो. नाउ the entire equation is balanced, you just need to remove the fractions. How do you remove the fractions? Sir, fraction आ रहा है 4, तो multiply the entire equation by 4 to remove this fraction. So what are you going to get? You'll get 4NO, you'd get 3O2, this 4 and 4 will cut, you'd get 3O2, and 4 times 0.5, that's 2. You'd get 2H2O, and you'd get 4HNO3, and that's the balanced equation. So 4NO, 3O2, and you have 4 times 0.5 is 2, and that's 4 right here. So that's a very 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 beautiful way of balancing. Sir, अगर कोई अकेला नहीं है तो कैसे बैलेंस होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ रेडॉक्स में अकेला होता है. लास्ट स्टेप दोबारा बता दें. आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग 4 विद दिस इंटायर इक्वेशन टू रिमूव दिस फ्रैक्शन. ये तो 3 over 4 और 1 over 2 है ना, 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फ्रैक्शंस हट जाएंगे. 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत है, हाँ. अब ए लेवल्स में दिस दिस चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अबाउट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, राइट? और मास स्पेक्ट्रोमेट्री आपके पास जोड़िए, सॉरी मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं, उसको क्या कहते हैं यार, स्पेक्ट्रोमेट्री है कुछ, मैं से भूल गया यार, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री कुछ ऐसे था. वो 1 मार्क का सवाल होता है, बट यू नीड एटलीस्ट 5 minutes ऑन दैट, राइट? ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप वो पढ़ते हो. तो भाई आपने फुल मार्क्स लेने, आई डोंट केयर, यू आर माय स्टूडेंट्स, आई वांट यू गाइस टू स्कोर फुल मार्क्स. आई डोंट केयर भाई, 1 मिनट का सवाल हो, 2 मिनट उस पर लगे, तो प्रैक्टिस से आपको ये डायरेक्ट भी हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आपने हर सवाल करना है, ये नहीं करना कि वो 1 मार्क के लिए अब मैं इतनी मेहनत करूं. हाँ बेशक एंड में कर लें, लेकिन करना जरूर है, ठीक है? दिस क्वेश्चन इज अबाउट. अच्छा, अब टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स कहते हैं इधर 1 1 डालो, फिर 2 2 डालो, फिर 3 3 डालो, और साथ साथ ये बार बार करते जाओ. वो ट्रायल एंड एरर है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो भाग गए काम से. Acha, this question is about sulfuric acid and salts that are made from sulfuric acid. Zinc reacts with sulfuric acid. Aqueous zinc sulfate is one of the products, right? Powdered zinc is added to dilute sulfuric acid. मुझे एक बात बताएं, zinc sulfate वो बनाना चाह रहा है. Which type of salt is zinc sulfate? Is it a soluble salt of group 1 or is it other soluble salt? It's a soluble salt, but group 1 के soluble salts are prepared through titration. This soluble salt is prepared through excess method. और excess method में you realize that the acid that you take must be limiting. Acid must be limiting. अच्छा, acid क्यों limiting होना चाहिए? I hope you all know that, हैं? I hope you all know that sulfuric acid must be limiting, right? अच्छा, पता कैसे लगेगा कि sulfuric acid must be limiting? क्योंकि आपके पास जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो जिंक सॉलिड थोड़ा बहुत एंड में रह जाएगा. एंड व्हाट you'd realize is आप जिंक सॉलिड ऐड करते जाएं, हाइड्रोजन गैस बनना बंद हो जाएगा, right? So if hydrogen gas does not form, that means that all the sulfuric acid has been utilized. Yes, so you need to have acid limiting in order. Why should the acid be limiting, kiddo? You should know this, but okay, I'll tell you. देखिए, जिंक का टुकड़ा मैंने लिया right here, that's in excess, and the acid is limiting, right? So what will happen is after all the acid reacts with zinc, you would still have a block of zinc left, and there'll be no more hydrogen forming, and you'd also have the salt that has been formed, which is now zinc sulfate. Now how do you separate aqueous zinc sulfate from a solid? How do you separate aqueous zinc sulfate from solid zinc? You literally filter it out. Once you filter it out, you pour zinc sulfate in the evaporating dish, you heat till the solution is saturated, and blah blah blah, right? But what if the acid was in excess? अगर acid excess में होता तो ये सारा block खत्म हो जाता. You'd have zinc sulfate aqueous and you'd still have H2SO4 left. So how do you separate zinc sulfate aqueous from H2SO4 aqueous, right? That's very difficult. That's near to impossible, right? For the O levels IGCSE, you can't do that. So it's very easy to separate zinc solid. That's why the acid must be limiting. Acha, name the limiting reactant. Obviously, that's sulfuric acid, sir. Simple as that. Dilute sulfuric. देखिए इधर लिखा है dilute sulfuric acid. So that's my dilute sulfuric
asset. Let's state two observations that indicate that zinc is in excess. What are the two observations? Observations is, are these IGCSE paper? Remember, after 2023, IGCSE and O level are now roughly the same. 99% O level की टेस्टिंग IGCSE की तरह हो गई. पिछले साल भी कुछ स्टूडेंट्स ने 2024 में और 23 में बच्चों ने कहा सर आप हमें IGCSE के पेपर क्यों करा रहे हैं? मैंने कहा पता लग जाएगा. पेपर के बाद वो दुआएं दे रहे थे, सबके स्टार्स थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको टीचर्स ने वही घिसे पिट्टे 2022 के ओ लेवल के पेपर्स कराए थे और 21 के अब ओ लेवल की टेस्टिंग बदल चुकी है, आईजीसीएसई के पैटर्न पे आ चुकी है फॉरवर्ड फ्रॉम 2023. सो इट्स बेटर कि एक टीचर आपको आईजीसीएसई की वेरिएंट्स भी कराए, ओ लेवल्स की भी वेरिएंट्स कराए, ताकि आपका दिमाग खुले. इसलिए मेरा दोनों पास पेपर सेशन कंबाइंड होता है. Acha, state two observations. What are the two observations? Obviously, you're going to see this solid left behind. This is what you'll observe. Observation is what you can see with your naked eyes happening. So, what can you see with your naked eye? You could see that, a solid is being left behind, right? And the solid is going to remain. And the second observation that you have is, which indicates that zinc is in excess, is that this solid remains and there's no more bubbling. Because, see, if hydrogen gas is forming in an aqueous solution, you're going to continuously see bubbling, effervescence, 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 right? But if the zinc is in excess, then you'd realize कि एक solid भी रह जाएगा और bubbling भी नहीं होगी. तो आपको पता है यार zinc excess में है, right? So what am I gonna say? I'll say, hey, solid remains, or the zinc solid remains. That's one observation. And the second observation is that obviously the fizzing or the effervescence. क्या spelling है भाई effervescence की? Effervescence. Is this correct? Effervescence stops. और fizzing stops और bubbling stops. Effervescence की spelling सही करनी चाहिए. ठीक है जी? Done. Now it says what is meant, what is the name of the filtrate? Filtrate, जब आप इसको filter करते हैं, zinc is going to be called as the residue and zinc sulfate will be obtained as filtrate. So what's the filtrate? That's zinc. Aqueous zinc sulfate लिख लें हैं, because it's in its aqueous state. तो aqueous लिखें ना लिखें एक ही बात है. UeUeOUS, aqueous zinc sulfate. Filtrate क्यों कह रहा हूँ, zinc sulfate. खत्म जी. आसान आसान. Yes sir, it's very easy. That's awesome. Sir, please share this recording in the group. यार YouTube पे अपलोड हो रहा होता है ना. Name two compounds which can both react as dilute sulfuric acid to produce aqueous zinc sulfate. Now you realize that when you prepare a salt using the excess method, you could prepare zinc sulfate through multiple various ways, right? How could you prepare zinc sulfate? Well, you could either react zinc with an acid and it's going to give you zinc sulfate and hydrogen gas. You could either react zinc carbonate with the acid and it's still going to give you zinc sulfate, carbon dioxide and water. You could also react zinc oxide with the acid and it's going to give you zinc sulfate and water. And you could also react zinc hydroxide with the acid and it's going to still give you zinc sulfate and water. देखिए acid base reactions आपने पढ़े. If you react an acid with a base, this is a weak base, that's a weak base, that's a base, that's a base. So if you react an acid with a base, it's going to give you the salt, which is going to be the positive ion from the base and the negative ion from the acid, which is sulfuric acid, right? So sulfate ion. So zinc sulfate will form, H2O will form. Zinc sulfate will form, H2O, CO2 will form because of the carbonate ion, CO2 will form. Zinc sulfate will form and H2O is going to form obviously because of the hydrogen ion and the O. The hydrogen. सर ये सब याद नहीं होता, इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है किडो. दिस इज द मेटल. यू कुड रिएक्ट मेटल विद एन एसिड. मेटल प्लस एसिड क्या होता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, जो कि ऊपर की है. फिर आप मेटल बेसिस को भी ले सकते हैं. आप तीन तरह के बेसिस होते हैं. मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड मेटल कार्बोनेट इज अ बेस. इट्स अ वीक बेस बट इट्स अ बेस. मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, यही तीन चीजें, और तो कुछ भी नहीं है. तो बेस है ना, एसिड बेस रिएक्शंस आप कर सकते हैं या मेटल के साथ. अच्छा मेरा एक सवाल है, व्हाट इफ यू वर टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट? What if I told you guys to prepare copper sulfate, right? Then my question is, which of these four methods could you not use? What if I were just to prepare copper sulfate? Which of these four methods could I not use?
Yes, I would not be able to use the copper method because you realize that copper would not react with the acid. No, not the hydroxide. Copper hydroxide is a base. Copper oxide is a base. Copper carbonate is a base. They'll all react with the acid and they'll give you copper sulfate, right? Acid-base reactions only, neutralization reaction. But you realize that if I take copper and react copper with acid, copper is below hydrogen in the reactivity series. Therefore, it will not be able to displace the hydrogen of the acid. तो ये reaction सिर्फ copper के साथ displacement reaction ना होता, तो you would need a base. You would need a base of copper, metal oxide, metal hydroxide, and metal carbonate to react it with the acid to in order to get that salt, right? तो बस इस चीज का ख्याल रखना है. कॉपर सिल्वर गोल्ड नहीं हो सकते बिकॉज दे आर बिलो हाइड्रोजन. अच्छा, नेम टू कंपाउंड्स विच कैन बोथ रिएक्ट विद. तो आप जिंक हाइड्रोक्स नेम लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना, नेम. सो यू कुड से जिंक hydroxide. You could also use zinc oxide, and you could also use zinc carbonate. मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट. खत्म जी. आगे बढ़े. Zinc sulfate crystals are produced by heating aqueous zinc sulfate until a saturated. What is meant by saturated solution? हाँ जी, saturated solution क्या होता है? हाँ जी, maximum solute dissolve, but that's only for 1 mark. Maximum solute dissolve at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature. So saturated solution means saturated solution is a solution which can dissolve no more solute at a given temperature, right? So it's a solution which can dissolve no more solute at a given temperature. ठीक है. हलवा हलवा, इजी इजी. सर आई हैव नेवर अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, प्लीज थोड़ा सा समझा दें. सुनो 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 सुनो. ये अब आपकी टीचरों की गलती, लेकिन सुनो. देखिए, थिंक अबाउट इट. यू गो टू योर किचन टुडे. आई नीड यू टू डू दिस टुडे. गो टू योर किचन, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर and start adding salt to it. Start adding salt to it, right? And you know NaCl, salt, the salt that is in your home, that's basically NaCl, right? The white namak, right? Start adding namak to it, and you realize that NaCl is an ionic compound, so it should dissolve, right? Because it's an ionic compound. When you add it to the aqueous solution, what'll happen? What'll happen? It'll dissolve. It'll break. The lattice breaks and it'll dissolve, right? तो होगा क्या, आप इसमें सॉल्ट डाली, यू नो दैट NaCl इज सॉल्युबल, तो आप सॉल्ट डालते जाए, वो डिसॉल्व होता जाएगा. सॉल्युबल का क्या मतलब है? पानी में डिसॉल्व होता जाएगा. तो आई नीड यू टू डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम. डालते जाएं. देल कम अ पॉइंट कि उस पॉइंट पे जब आप उसको सॉल्ट डालें, वो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा. और वो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा? वो मैंने अपने लाइव क्लासेस में पढ़ाया, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं, लेकिन वो सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा. That is when you say that the solution has become saturated. Saturated का क्या मतलब है कि now even though NaCl is a soluble salt, now this solution can no more dissolve this solute. This solution can no longer dissolve more solute at this particular temperature. तो फिर हम क्या करते हैं? हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं. पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो पार्टिकल्स में जगह बन जाती है और ये फिर से डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है. ठीक है जी. सो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज when a solution can dissolve no more solute, it cannot dissolve any more solute at that particular temperature. तो ये होता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन. बट अगर अम्मी चित्तर मार दे इस बात पे कि आप क्या कर रहे हो, नमक जाया कर रहे हो, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं. सो दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई क्रिस्टल्स फॉर्म व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन कूल्स डाउन. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि व्हेन अ सोल्यूशन इज सैचुरेटेड and you let it cool down, when you heat it till the point of crystallization or till the solution becomes saturated and you let it cool down, you know that soluble solids, they tend to become less soluble at lower temperatures. तो होगा क्या? Sodium chloride, it was a soluble solid, but as the temperature decreases it will become less soluble. तो solution उसको वापस थूक देता है. Solution precipitates it, right? So you realize, और वो crystals आपके पास बन जाते हैं. So you realize that why do crystals form at when the saturated solution cools down? Because soluble solids, they tend to become less soluble at lower temperature. ठीक है जी. तो मैं कह सकता हूं sir, the solubility decreases as the temperature decreases. सर ये पार्ट 2 फिर एक्सप्लेन कर देगा. ओहो, ये फिर वाला काम बड़ा मुश्किल है. लेकिन अच्छा, ये देखो,
ये NaCl का आपके पास पड़ा हुआ है, बहुत हाई टेम्परेचर पे पड़ा है, बहुत हाई टेम्परेचर। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिक ये क्यों होता है। वैसे मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन आप में से काफियों ने नहीं पढ़ा मेरे से, तो बता देता हूँ। देखिए, ये NaCl है, ये डिसॉल्व हुआ हुआ है, इट्स एट अ हाई टेम्परेचर, राइट, इट्स एट अ हाई टेम्परेचर। और ये आपके पानी के मॉलिक्यूल्स है, और ये बीच में क्या चीज़ है, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कराता हूँ। ये बीच में NaCl के पार्टिकल्स हैं जो कि डिसॉल्व हुए हैं, NaCl के पार्टिकल्स हैं जो कि डिसॉल्व हुए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, why do saturated, अब ये saturated solution है, right, it's at a high temperature and it can dissolve no more solute, बस इसमें dissolve हो गया। अब क्या होगा, when you let it cool down, when you let the solution cool down, what happens to the particles when the solution is cooled down? States of matter chapter number 1, particles को क्या होते हैं when you decrease the temperature? What happens to a particle? There's a decrease in kinetic energy of particles. Particles move. Particles move. Yes, MMM, batao. Particles move closer together, right? Because if you decrease the temperature, the particles will start to move closer together. तो अब क्या होगा, ये पानी के particles will start to move closer together, और ये जो NaCl ने जगह ली थी, it will spit this NaCl out। ये कहेगा भाई निकलो निकलो निकलो, मेरी जगह पकड़ी हुई है, go away, दफा हो जाओ इधर से। That is why they spit out, they precipitate, they give you that crystal at a lower temperature। अब समझ आई ट्रिपल एम है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना, तो कुछ नहीं है इसमें, हलवा हलवा हलवा, कुछ भी नहीं है। तो चीजों को सिंपल बनाया करें, हलवा है, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाई वी से व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन इज दैट solubility is going to decrease, solubility decreases at the temperature decrease। अच्छा, suggest a pH of a strong alkali। strong alkali का क्या pH होता है, 13 14 में से कोई भी लिख ले। kiddo, you are telling me, you've DM'd me, sir my friend बाद में देखेंगे यार, इसको मैं रिस्पॉन्ड बाद में करता हूँ kiddo। अच्छा, pH इसका 14 13 में कुछ भी लिख ले, you'd realize that 1 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक, 1 is neutral, 7 is the most acidic, and 14 is the most basic or the most alkaline। Done, sir। Name a substance which can be used to confirm the pH of a solution of a strong alkali। Which substance? अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे सिर्फ pH की confirmation के लिए of a strong alkali। He's saying tell me pH of a strong alkali। कुछ लोग कहेंगे 7 is neutral ना, 7 बिल्कुल नहीं। मैंने कहा 1 is strongest acid, strong acid, 7 is neutral and 14 is the strongest base। 7 से ऊपर बेसिक हो जाता है, 7 से नीचे एसिडिक हो जाता है, 1 strongest acid and 14 strongest base। अच्छा, सम ऑफ यू माइट थिंक कि सर लिटमस पेपर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। बच्चों के दिमाग में आ सकती है सवाल, मैं जब छोटा था मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें। देखिए, लिटमस पेपर, वो आई लेट इट बी आइदर, अगर वो आपके पास वीक एल्कली हो या स्ट्रॉन्ग एल्कली हो, अ डैम्प रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू, right? If you use a litmus paper, a damp red litmus paper will turn blue। अगर weak alkali हो, strong alkali, जो मर्जी alkali हो, it'll turn blue। It'll not tell you the strength of the alkali। कुछ लोग कहेंगे सर pH मीटर भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। pH मीटर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट रीडिंग देगा, बट दैट्स नॉट अ सब्सटेंस, दैट्स एन इंस्ट्रूमेंट, दैट्स एन apparatus। तो आखिरी क्या रह गया, दैट्स द यूनिवर्सल इंडिकेटर, राइट। हम यूनिवर्सल इंडिकेटर देंगे, बिकॉज यूनिवर्सल इंडिकेटर, it gives you it gives you different colors over a range of pHs। So if it's the strongest alkali, it'll give you a violetish color, right? Indigoish, violetish color, right? So I'm going to say, hey, use the substance which is universal indicator। Done, sir। अमोनिया रिएक्ट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर के पहले तीन कलर्स आर फॉर एसिडिक सॉल्यूशंस, आखिरी तीन कलर्स आर फॉर बेसिक, एंड ग्रीन इज न्यूट्रल, H2O। H2O हाइड्रोजन, दैट्स न्यूट्रल है। अमोनिया रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट। अच्छा, अमोनिया किस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अमोनियम सल्फेट? हाँ जी, कौन सा एसिड? देखिए, इफ इट्स फॉर्मिंग सल्फेट, इफ इट्स फॉर्मिंग द सल्फेट आयन, कौन सा एसिड होना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सी, you need to be very careful। कुछ लोग इधर लिख लेंगे सल्फ्यूरिक, they'd get carried away and they'd write sulfuric acid। No, please, if it's saying write the formula, write the formula। So that's what H2SO4। अच्छा, अब एक और बात भी सुन लें, that's sulfuric acid, right? एक और बात भी सुन लें, अगर खुदा ना खास्ता, खुदा, बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर डिस्टिंक्शन लेवल तैयारी, राइट, किसी का शायद आ जाए, तो मैं आपको एक बात कहूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपको फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का ना आता हो, या ऐसा कंपाउंड हो जैसे पोटेशियम एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैंगनेट 7 का फॉर्मूला नहीं आता लेकिन नाम आता है, एंड ही सिंग राइट द फॉर्मूला फॉर इट एंड यू राइट द नेम फॉर इट, राइट। आपको फॉर्मूला नहीं आता, आप बजाय ये कि गलत फॉर्मूला लिखें, नाम लिख लें, कैम्ब्रिज मार्क दे देता है। लेकिन लेकिन
इट्स बेटर टू स्टे ऑन द सेफ साइड। अगर फॉर्मूला मांगे फॉर्मूला, लेकिन लेकिन खुदा ना खास्ता इफ यू आर ऑब्लिवियस ऑफ द फॉर्मूला कि यार पोटेशियम मैग्नेट का क्या फॉर्मूला था, नाम तो आता है, फॉर्मूला नहीं था, नाम लिख लें, फॉर्मूला गलत ना लिखे, नाम बेशक लिखें, ठीक है, तो डिस्टिंक्शन से रह जाओगे, लेकिन नाम लिख ले, कुछ नहीं होता। स्टेट वन यूज ऑफ अमोनियम सल्फेट। व्हाट्स द यूज ऑफ अमोनियम सल्फेट? अमोनियम सॉल्ट्स किधर इस्तेमाल होते हैं? फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है, दैट्स द बिगेस्ट यूज ऑफ अमोनियम सल्फेट। द बिगेस्ट यूज इज फर्टिलाइजर्स, और यही यूज आपके कोर्स में है, फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल, क्लीनर्स वगैरह में ज़्यादा बेहतर है फर्टिलाइजर्स लिखने, क्योंकि आपके कोर्स में भी फर्टिलाइजर्स है। आगे बढ़े, कॉपर टू ऑक्साइड। Sir, copper 2 oxide is formed when copper 2 nitrate is heated, and he's given you the formula. Do you need to know this reaction? Absolutely not. But he's given you the reaction. ठीक है? State the class of oxide to which copper oxide belongs to. Which class does it belong to? It belongs to the basic class. Basic class of oxide. So it belongs to basic oxides. खत्म। ऊपर ऑक्साइड लिखा है ना, तो इसलिए मैं बेसिक लिख रहा हूँ, आप लिख लें बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ऑक्साइड, क्योंकि ऊपर एक दफा लिखा हुआ है तो। In the presence of oxygen, copper reacts with sulfuric acid to form copper sulfate and water. देखें अब ये रिएक्शन क्या आपके कोर्स में है? सर व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड? यू हैव बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। आतिफ, मेटल ऑक्साइड, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स एक्सेप्ट फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। लेड अब आपके कोर्स में नहीं है, दीज टू आर एम्फोटेरिक, राइट? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which act as an acid when reacted with a base and act as a base when reacted with an acid. Acidic oxides क्या होते हैं? All non-metal oxides are acidic oxides except for nitrous oxide, which is N2O, not NO2, N2O. That's laughing gas, right? Nitrous oxide, H2O, and carbon monoxide. These three are neutral oxide. They neither show acidic properties nor do they show basic properties. Yeah? अच्छा, अब देखिए ये इक्वेशन क्या आपके कोर्स में है? नहीं, लेकिन उसने आपको सब कुछ दे तो दिया। वो कह रहे कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ही वांट्स यू टू राइट द सिंबल्स। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, हाँ जी लिखिए, शाबाश, इन द प्रेजेंस ऑफ। सर प्लीज आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा कोर्स पढ़ा दे। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। अच्छा, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फ्यूरिक एसिड would give you what? Would give you what? He's given you everything. He's saying would form copper 2 sulfate. Copper 2 sulfate का क्या मतलब है? कॉपर के ऊपर 2 प्लस है, SO4 is 2 minus. So you'd realize for one copper ion, SO4 2 minus ion काफी है, right? So it give you copper sulfate and it would beautifully give you H2O, right? Now is the time for balancing. Sir, can you do a marathon one day? Now is the time for balances. नहीं नहीं एस, ओ नहीं नहीं एस पर मिनट। अच्छा, अब बैलेंसिंग सीखते हैं। देखिए 2 मार्क का सवाल है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू राइट द स्टेट सिंबल्स, क्योंकि 2 मार्क है, 1 मार्क इक्वेशन के, अब 1 मार्क बैलेंसिंग है। देखें अगेन, बैलेंसिंग के लिए सी ऑक्सीजन इज अलोन, इसको हम आखिर में देखेंगे, ठीक है जी। अब देखिएगा, यू हैव वन कॉपर हियर, यू हैव वन कॉपर हियर, गुची। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ऑक्सीजन अलोन, मैं कहूंगा यू वन सल्फेट हियर एंड यू वन सल्फेट हियर, गुची। सो कॉपर और सल्फेट की तो कहानी खत्म हो गई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। यू हैव 2 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट, राइट हियर, एंड यू हैव 2 हाइड्रोजन ऑन द राइट, गुची। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। 2 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट, 2 हाइड्रोजन ऑन राइट, हाइड्रोजन इज ऑल्सो बेस्ट। अब you have one O, you have one O on the right and you have 2 O's on the left। अब देखें आखिर में क्या रह गया? O। अब O2 को बैलेंस करते हैं। अब इस O2 के साथ मैं क्या करूं? इसको मैं नहीं छेड़ूंगा ना, इसको मैं 2 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर हाइड्रोजन छिड़ जाएगा, फिर ये छिड़ जाएगा, तो नहीं। आई एम गोना प्ले अराउंड विद दिस। हियर यू हैव 1 O, हियर यू हैव 2 O's, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि क्या है? 1। x is equal to what? 1/2। I'm gonna beautifully add 1/2 here. That's the balanced equation. अब एग्जामिनर कहते हैं नहीं मुझे फ्रैक्शंस नहीं पसंद आपके, तो ये अक्सर जब इक्वेशंस लिखने ना पेंसिल से लिखा करें। अब देखें, अब आपके एग्जामिनर को फ्रैक्शंस नहीं पसंद तो ठीक है, आपको नहीं पसंद, मैं इसको पूरा का पूरा होल नंबर में कन्वर्ट करूंगा। सो मल्टीप्लाई दिस विद 2, यूड गेट 2 कॉपर प्लस O2। ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आपको ए लेवल्स में बहुत मदद करेगा। दैट विल गिव यू 2H2SO4 एंड इट विल गिव यू 2 कॉपर सल्फेट and it'll give you 2H2O। खत्म। 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 2 समझ नहीं आ रहा किडो? 2 को जब 1 से जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है, तो 2 कॉपर। 2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2। आई जस्ट वांट रिमूव दिस फ्रैक्शन। तो इस 0.5 को अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये 2 नहीं चाहिए। 2 कॉपर्स, 1 O2,
2 into 1 is 2H2SO4. 2 into 1 is 2 copper sulfate. 2 into 1 is 2H2O. I love this, Mariam is saying. That's awesome, Mariam. Thanks. Last question we had two fractions. तो लास्ट क्वेश्चन में बिकॉज यू हैड टू फ्रैक्शंस वी नीडेड टू सी कि कौन सा फ्रैक्शन. अब देखिए ये टू अगर टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर टू फिर भी रह जाएगा ना. 3 / 4 मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4. 2 1s are 2, 2 2s are, तो ये 3/2 तो फिर भी रह जाता, फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते. तो इसीलिए जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है नीचे डिनोमिनेटर जो सबसे बड़ा है मैंने उससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3/4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा, इधर आपके पास 3 रह जाएगा. और ये 1/2 है तो 1/2 को भी जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 1s are 2 2s are. आप कैलकुलेटर पे करें. हैं माई मैथ सक्स, सॉरी, गॉट इट, दैट्स ऑसम. अच्छा, कोई नहीं, एज लॉन्ग एज यू गॉट इट, कोई नहीं. मैथ्स बड़ी कमज़ोर लग रही है मुझे. किधर से मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, बताओ जी. मैसेज करो डीएम में, किधर से पढ़ रहे हो. है मैथ्स भी पढ़ाना शुरू कर दूँ अब. हाँ, मैथमेटिक्स भाई साहब इज अ वेरी गुड टीचर, इसलिए तो आपको मसला नहीं आना. सर बासित इज ऑल्सो गुड टीचर, इसलिए आप लोगों को मसला ही नहीं आना. ये जिन लोगों को मसले आ रहे हैं वो बताएं. नो कमेंट्स यार, हर टीचर अच्छा टीचर होता है. हर टीचर इज गुड टीचर. सर क्यूट लग रहे हैं आज. नो नहीं हो, नहीं हो, नहीं, अस्तगफुरुल्लाह. कहाँ पढ़े पढ़े. कंप्लीट द इक्वेशन. यार देखें, आपका ओ लेवल का जो ग्रेड है ना, उस पे थोड़े से पैसे खर्च कर लिया करें. आप कैम्ब्रिज के 30 30 40 40 हज़ार भर रहे होते हैं, आप स्कूलों के 3 3 साल के पैसे भर रहे होते हैं, जब आखिरी बारी आ जाती है ग्रेड की फिर पैसे खर्च करना मुश्किल हो जाता है, फिर नहीं लगाने. यार आपका पूरा फ्यूचर है आगे, क्या हो गया. सर आर यू फ्री आफ्टर क्लास, देख लेते हैं. अच्छा जी, complete the equation for the reaction by adding state symbols. So you have zinc. Zinc is a metal, that's a solid. HCl is hydrochloric acid. Acids are aqueous, and that's aqueous. Although even if he did not give you this state symbol, let's suppose उसने ये भी ना दिया होता, could you write it's aqueous? Absolutely, because all chlorides, you know the solubility for chlorides. All group 7s are soluble except for LMS, lead, mercury, and silver. This is zinc, so this would also be soluble. एंड हाइड्रोजन इज ऑब्वियसली आई गेस. मुफ्त के 2 मार्क्स से, खुदा की कसम यार ये क्या है. इसको आप लोग कहते हो मुश्किल है. I swear. अच्छा, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर ब्रोमाइड आयंस. Include the observations for a positive result. So what's the test? Sir, what do you need to do? You need to add HNO3. You need to acidify it. Add की जगह मैं लिखूंगा acidify it with, acidify with. अब देख रहे हैं ये 2023 का सवाल है. 2023 का सवाल है और आप लोग कहते हैं सर ये तो एटीपी में गिवन होता है, थ्योरी में नहीं गिवन होता. यू नीड टू नो दिस. सो acidified with HNO3 aqueous followed by AgNO3. अच्छा, ये हम क्यों डालते हैं, ये देखें, HNO3 इसलिए डालते हैं क्योंकि यू डोंट वांट एनी कार्बोनेट आयंस मिंगलिंग, टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज, टू रिमूव एनी कार्बोनेट आयंस इफेक्टिवली, राइट. लेकिन उसके बाद यूड हैव Ag plus ions and the nitrate ions in this mixture, and you'd realize that you'd also have, if you have the bromide ions in this particular mixture, what's going to happen is silver bromide is insoluble, so it's going to precipitate. सर एल्कीन नहीं डाल सकते हैं. एल्कीन ब्रोमाइड आइंस के साथ, एल्कीन्स का टेस्ट तो होता है Br2 एक्वस के साथ, दैट्स Br2 एक्वस जो कि आपके पास ऑरेंज है. एल्कीन्स का आइडिया आ गया. ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड का एक ही टेस्ट है ये, ठीक है. एंड दिस इज गोना बी ए क्रीम प्रेसिपिटेट. अच्छा, अगर आयोडाइड आइंस होते तो फिर प्रेसिपिटेट येलो होता, और अगर क्लोराइड आइंस होते तो फिर वाइट होता. सो इट विल गिव यू ए क्रीम प्रेसिपिटेट. अच्छा. अच्छा, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि एसिडिफाई विद, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे एसिडिफाई विद एड एसिडिफाइड, एड एसिडिफाइड AgNO3. आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे एड एसिडिफाइड AgNO3. ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे. ठीक है. ऐसे ऐड एसिडिफाइड HNO3 AgNO3 का मतलब ये है कि आपने एसिडिफाई करके डाला है, आपने इसमें एसिड डाला हुआ है. सो यू कुड से एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड, और 2023 ऑनवर्ड्स आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि एसिडिफाई विद AgNO3. डायरेक्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं. 2023 से पहले ये लिखना होता था, अब 2023 एंड ऑनवर्ड्स आप डायरेक्ट, ये भी, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं. एड एसिडिफाइड AgNO3. एसिडिफाइड का मतलब अब आपको बस आना चाहिए कि दैट्स बेसिकली क्लोरीन या आयोडीन होता तो ऑब्जर्वेशन क्या होती. जुलेखा मरती की औरत, अभी तो बताया है.
व्हाइट क्यों लिखेंगे इंस्टेड ऑफ क्रीम? व्हाइट इज विद द क्लोराइड आयंस, एंड आयोडाइड आयंस के साथ इट्स येलो। ऑफ वाइट, ओ नहीं, क्रीम लिखो। सर अगर आपके लेक्चर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूं तो एक दिन में हो जाएगा 100%। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेरा पोर्टल है ना, उसमें मैंने क्रैश कोर्सेज भी डाल दिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मोल्स की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 घंटे का क्रैश कोर्स है, पढ़ें, आपसे हर सवाल होगा, मेरा वादा है। 6 घंटे। एक तो आप और आपका पोर्टल सर, हमें पता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक्स, आई नो। आई लव यू सर। आई लव यू टू, हैशटैग नो होमो। सर यूट्यूब पर है पोर्टल, यूट्यूब पर नहीं, आई हैव टू कॉन्टैक्ट मिस नूर। अच्छा आगे बढ़े। एक्वस अमोनिया इज एन एल्कली, व्हाई इज इट एन एल्कली? एक्वस अमोनिया इज एन एल्कली। एक्वस अमोनिया क्या होता है? इज एक्वस अमोनिया NH3? Is aqueous ammonia NH3? NH3 aqueous? अच्छा, you could also write aqueous ammonia as NH3 aqueous, but it's better to say कि अच्छा अगर अमोनिया गैस है, ये गैस है और इसको मैं पानी में मिला रहा हूँ, इसको मैं aqueous कर रहा हूँ, it's a weak base, so obviously reversible sign, but since it's a base, it's going to be a proton acceptor. It's going to accept the proton and you're going to get ammonium hydroxide, right? When ammonia gas accepts a hydrogen ion, just add the hydrogen ion to it. So you will get NH4 plus और पीछे क्या रह जाएगा? OH माइनस, राइट? सो यूर गोना एंड अप विद अमोनियम आयन एंड यूर एंड अप विद अ हाइड्रोक्साइड आयन। तो आप एक्वस अमोनिया को NH3 एक्वस भी लिख सकते हैं, एंड यू कुड ऑल्सो राइट एक्वस अमोनिया एज NH4OH एक्वस। ठीक है। Aqueous ammonia reacts with nitric acid to form a salt. Done, sir. Aqueous ammonia nitric acid के साथ react करते हैं to form a salt. Salt. What is going to be the name of this salt? Let's check it out, sir. Aqueous ammonia, which is ammonium hydroxide, it reacts with HNO3 to form a salt. Which salt will form? So you know that the hydrogen in the acid and the OH in the base, they'll react together to give you what? H2O. What's left behind? What's left behind? You're left behind with the ammonium ion and you're left behind with the nitrate ion. So the salt is going to be ammonium nitrate, and that's obviously aqueous. That's a liquid. That's aqueous. That's aqueous. So what's the name? That's ammonium and a nitrate. हाय जी, हाय रे हम सद के तुम्हारे। अच्छा, नेम द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट फ्रॉम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस अमोनिया। हाँ जी, कौन सा टेक्निक इस्तेमाल होता है? जिसने एक्सेस मेथड का गला दबा दूंगा। व्हाई? बिकॉज यू नो दैट इफ यू वर टू प्रिपेयर अ सॉल्ट ऑफ ग्रुप 1 और एन अमोनियम सॉल्ट, यू यूज टाइट्रेशन। व्हाई डू यू यूज टाइट्रेशन? बिकॉज बोथ आर सॉल्यूशंस, बोथ आर एक्वस सॉल्यूशंस। टाइट्रेशन वर्क्स विद एक्वस सॉल्यूशन। सर एक्सेस मेथड के लिए हम एक्सेस मेथड की जगह हम टाइट्रेशन क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? क्योंकि यू डम्बोज, व्हाट यू रियलाइज इज वेयर डिड जिंक गो? इज जिंक एन एक्वस सॉल्यूशन? किधर गया यार जिंक? किधर गया? इज जिंक एन एक्वस सॉल्यूशन? कुछ लोग कह सकते थे ना, लोग पूछते हैं सर इसमें टाइट्रेशन क्यों नहीं कर सकते, किधर गया यार? ओ नहीं, ओ नहीं, मनहूस जिंक किधर गया? नजर ही नहीं आ रहा। Oh नहीं, oh नहीं, oh नहीं, ये। So can you tell me how will you perform titration with this baddie? How do you perform titration with this baddie? You can't. Zinc is a solid. कैसे पिपेट में डालोगे? कैसे ब्यूरेट में डालो? देखो, in titration एक चीज ब्यूरेट में होती है, एक पिपेट में होती है, and ब्यूरेट and पिपेट are used to measure the volume of solutions, right? Liquids. तो कैसे आप जिंक को ब्यूरेट या पिपेट में डालो? शमीम कह रही है, रोना आ रहा है। शमीम इज द इजीएस्ट चैप्टर, देख लो मेरी रिकॉर्डिंग। ब्यूरेट में नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड अमोनिया। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। ठीक है जी। सो व्हाट इज दिस टेक्निक कॉल्ड? नॉट एक्सेस मेथड, रादर इट्स टाइट्रेशन। सॉल्यूशंस है ना दोनों। इट्स द ओनली हार्ड चैप्टर, इट्स द इजीएस्ट चैप्टर। शमीन देख लो, देख लो, अभी भी वक्त है, देख लो, 12 लेक्चर्स हैं टोटल इसके। 12, along with all practice. इथेनोइक एसिड इज अ वीक एसिड। वीक का मतलब क्या है? पार्शियल आयनाइजेशन, पार्शियल डिसोसिएशन, राइट? सो वीक, इट्स इन, जस्ट टेल मी व्हाट वीक मींस। वीक का मतलब बताओ, वीक एसिड का नहीं, वीक का बताओ। सर इस बार ये नेम कितने ही मुश्किल हैं सर। ये क्लास कब ओवर होगी? जब आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, किसी ने रोका थोड़ी नहीं। सर कुछ मुनासिब करें, मिसनूर से बात करें। सर 12 हो गए हैं सर, इग्नोर क्यों कर रहे हैं? किसको नहीं कर रहे इग्नोर यार? नीचे देखना होता है, वो शक्ल अपनी देखनी होती है, स्क्रीन को देखना होता है कि राइटिंग मैं सही लिख रहा हूँ कि गंदी लिख रहा हूँ। सामने मेरा स्क्रीन भी खुला हुआ है ना, तो उसको भी टाइम टू टाइम देखता हूँ यार, अच्छी लग रही है राइटिंग की नहीं, कुछ आउट ऑफ द व्यू तो नहीं जा रहा। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, वीक का मतलब क्या है सर? वीक मीन्स पार्शल डिसोसिएशन।
और पार्शियल आयनाइजेशन। हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख लें यार, इन एक्वस सोल्यूशन लिख लें। ये ब्रैकेट भी लिखा करें, इन एक्वस। सर डू यू नो वी हैव स्टार्टेड फूड बिजनेसेस फ्रॉम होम, दैट्स ऑसम। सर किधर मिलेगी आपकी रिकॉर्डिंग? मिस नूर से। सर आई एम गना परचेज द पोर्टल इंशाल्लाह टुडे, आई लव द वे यू टीच, थैंक यू। थैंक यू। सर माई इंटरनेट वॉज वीक, डिड यू सॉल्व द ऑर्गेनिक क्वेश्चन वाला? नो हरम, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज नहीं पढ़ाई। जो पोल में रिकॉर्डिंग में जो ग्रुप में पोल बना था उसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे। कल कर लेंगे, पॉलीमराइजेशन भी कर लेंगे और वो क्वेश्चन भी कर लेंगे अगर आप कहते हैं। सर एक टॉपिक के लिए पूरा पढ़ो तो आप सिर्फ एक टॉपिक ले लें। एक टॉपिक भी आप ले सकते हैं, वो कोई इशू तो नहीं है। हाँ, जस्ट टेक अ टॉपिक इफ यू वांट। हाँ ठीक है। अच्छा, राइट द फॉर्मूला ऑफ द आयन प्रेजेंट इन aqueous solutions of acid। Which ion is present in aqueous solution of acids? Acids में कौन सा आयन होता है? कौन सा कॉमन आयन है हर एसिड में? That's the hydrogen ion, but it's saying write the formula, don't write the name। Formula is H plus। H2 नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, नहीं 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 बच्चे, की कर रहा है? नहीं नहीं, H2 इज हाइड्रोजन गैस। आतिफ, आतिफ चाहिए भाई तुझे पोर्टल। अल्लाह माफ करे, मैं क्या कर रहा होता हूँ? मुझे चाहिए आपका मोराल ऊपर करूं, मैं आप लोगों को तंग कर रहा होता हूँ। नहीं नहीं, खैर छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इधर ऐसे ही सीखोगे, प्रैक्टिस करते जाओ, हो जाएगा। एज आई सेड, ओ नहीं इज परमानेंट। अब क्या करूं यार मैं? तो आई डोंट इवन नो इफ यू आर गेटिंग दीज मैसेजेस। नो, आई एम गेटिंग देम थ्रू डायरेक्ट मैसेजेस, क्योंकि जब मैंने ओपन छोड़ा होता है ना, क्योंकि बिकॉज दिस एनीबडी कैन जॉइन दिस मीटिंग, दैट्स व्हाई आई हैव डिसेबल्ड माइक, आई हैव डिसेबल्ड वीडियो एंड आई हैव डिसेबल्ड चैट विद एवरीवन। क्यों? क्योंकि अगर चैट विद एवरीवन हो जाते हैं तो कुछ लोग आके गालियां भी लिख लेते हैं। वो क्या होते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कैमर्स नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं यार? ट्रोलर्स। जो ट्रोलर्स होते हैं वो गालियां लिख लेते हैं, वीडियो लगा के कुछ कर लेते हैं, जो भी है। तो बस शपाटर। हाँ, स्पेशली एक स्कूल है उससे बहुत सारे ऐसे कहते हैं। सर यू शुड ट्राई स्टैंड अप कॉमेडी, सेंस ऑफ ह्यूमर, स्टॉप। थैंक यू खुशी, सोचा है मैंने। सर छपड़ी उसको कहते हैं, हाँ छपड़ी होते हैं सारे, छपड़ी वो वाले। सर एक्सेस मेथड किन के लिए होता है? सॉल्यूबल सॉल्ट्स अदर देन ग्रुप वन एंड अमोनियम। सर आज चिली ऑन द ट्रैक नहीं सुनाया? वो चिली ऑन द ट्रैक, somebody here for the snack, she be smelling like paper, Santry Haga where you at। सर मेरे स्कूल को बदनाम कर दिया। अगर आपका स्कूल का नाम आर से आता हो और आपके सिटी का नाम ए से आते हो तो बिल्कुल। लेकिन अच्छे बच्चे भी उधर से बहुत है, बहुत। सर यू आर नर्ड एंड नॉट नर्ड एट द सेम टाइम, आई एम नॉट अ नर्ड। सारों ने स्कूल पहचाने, सारे मैसेजेस करें। अरे यार असल में स्कूल में मैं बहुत मशहूर हो गया था, लेकिन वो सब वही मैसेज कर रहे हैं। पूरा वो स्कूल इधर बैठा हुआ है। अच्छा बस, और सवाल करूं कि बस करूं, बस ट्रक करूं कि नहीं? करूं, करता जाऊं? ओ नहीं, नो नॉट बीकन, क्या हो गया? यार ग्रूमिंग ग्रूमिंग का फर्क होता है बस। आपके क्लासमेट्स सारे पहचानते हैं, हाँ जी सारे पहचानते हैं, सारे। क्या कह सकते हैं यार, ग्रूमिंग ग्रूमिंग का फर्क होता है। वेयर आर यू फ्रॉम सर? ट्रिपल एम, आई एम फ्रॉम Afghanistan. No, I am from Lower Khyber. Do you teach somewhere? I teach at my academy, which is Conceptuals Academy, an online academy. I don't teach physical classes. हाँ, अगर अपना स्कूल खोलूँ तो फिर शायद कर लूँ, या अपनी फिजिकल एकेडमी खोल लूँ तो कर लूँगा, वरना तो नहीं। यार क्या है यार, ऑनलाइन कितना ज़बरदस्त है, पूरे पाकिस्तान से लोग बैठे हुए हैं, हर जगह से। लाहौर में खोलें, उधर खोलें, नहीं नहीं, ओनली कैंप स्कूल तो नहीं हुआ सारा। तो यार बड़ी आसान है, चीज़ों को सिंपल रखा करें। असल में टीचर्स से ना एक फंडामेंटल चीज़ भूल गई है, और वो फंडामेंटल चीज़ जो टीचर्स भूल गए हैं वो ये कि बच्चों के साथ मेहनत करनी होती है। टाइम नहीं ज़ाया करना होता है, 3 साल ज़ाया नहीं करने होते, पता नहीं 3 साल में आपको क्या करा है। वो चीजें हम ट्यूशन वाले 4 4 महीनों में करा रहे थे, जो आपको स्कूल 3 साल में स्कूल से पढ़ना चाहिए। हाँ, स्कूल मजबूरी है। यू नीड टू अटेंड स्कूल फॉर ग्रूमिंग पर्पस, फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट, फॉर सोशलाइजिंग। तो स्कूल की पढ़ाई के अलावा बड़े फायदे हैं।
सर वॉच मी रिकमेंड यू टू ऑल माय जूनियर्स, अगले साल से पैसा ही पैसा। ओ बेटा मैं वैसे भी बड़ा पैसा छापता हूँ, कोई नहीं। अल्लाह माफ करे, नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू, वैसे थैंक यू सो मच रिची रिच सर। सर आप तो 2.5 करोड़ की गाड़ियां, डेढ़, और नहीं और नहीं और नहीं, अस्तगफुरुल्लाह। जी बिल्कुल पड़ी। ओ नहीं नहीं, इलॉन मस्क क्या हो गया। और नहीं, नहीं 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 नहीं। अच्छा करूं और सवाल की बस खत्म। सर आप सर नोमान को जानते हैं? नहीं, करूं करूं करूं, प्लीज बस कर दें, प्लीज बस कर दें। सर का काले डाले सर सुलेमान मस्क को नहीं। खुश होना चाहिए यार, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ सर, बस बस, वी डोंट दे डोंट वांट ग्रेड्स, हरम सिंह करते जाएं। अच्छा लेट्स हैव अ पोल, अ ब्यूटीफुल पोल, कैन यू गाइस रेज। अच्छा वैसे मैं इधर से पोल भेज सकता हूँ क्या? इधर से मैं कोई पोल भेज सकता हूँ फ्रॉम द जूम चैट? एम आई एबल टू पुट अ पोल? व्हेन डू यू स्लीप? आई डोंट स्लीप। अच्छा, दोज ऑफ यू वांट मी टू कंटिन्यू, रेज योर हैंड्स। चलो सर ग्रुप पे पोल डाल दें, रेज योर हैंड्स दोज ऑफ यू वांट मी टू कंटिन्यू। 6 8, आधे से, जब आधे से ज्यादा हो जाएंगे फिर कर लेंगे। अभी 15 16 17, ओ यू हैव टू रीच एटलीस्ट हाफ। हाफ हो जाए, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। 19, you need more, it's 19 20 20। चलो बहुत सारे कह रहे हैं कंटिन्यू करो, कर लेते, 2 3 सवाल और कर लेते, क्या हो गया, 2 3 सवाल। सर खुदा का वास्ता है कर लें, ठीक है कर लेते, लोअर योर हैंड्स, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स। क्रोमियम 3 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन एंड क्लोरीन टू प्रोड्यूस chromium 3 chloride and carbon monoxide. Construct the equation. See, he's given you everything, you just need to construct it। See, chromium 3 ऑक्साइड लिखें, reacts with carbon, C लिखें, it's carbon, and chlorine is Cl2, let's write it। So Cr2O3 plus Cl2 plus carbon would give me what and what? Would produce chromium 3 oxide. What will be the formula for chromium 3 chloride? Sorry. Chromium has a charge of 3 plus. Why? Because of the oxidation state that helps us figure it out. And cross multiply, what do you get? You get CrCl3. Oh, why am I writing Cl2? Cl3. And he's saying you get, oh, he's given you the formula. And he says you get carbon monoxide, and he says you get carbon monoxide, ठीक है जी। अब 1 mark is for writing the equation and 1 mark is for balancing. How do you balance it? Sir, you have 2 chromiums on the left, you only have 1 chromium on the right, so I'm gonna insert this beautiful 2 right here। कोई और कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ओ नहीं, वो chili on the track, chromium is balanced। Then let's look at the O's, you have 3 O's on the left, you need 3 O's on the right। I'm gonna put 3 right here। अब कार्बन और क्लोरीन दोनों अकेले हैं, दोनों में से कोई भी पहले कर सकते। सी, you have 3 C's on the right, you only have 1 on the left, so I'm gonna add a 3 here। And then at the end you have 6 Cl's on the right, 2 times 3 is 6, 6 Cl's on the right, and you only have 2 on the left। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, छक्का आए, 6/2, that's 3। राइट, यू डोंट नीड टू राइट द स्टेट सिंबल्स, फिर 3 मार्क का सवाल होता है और वो आपसे पूछेगा भी नहीं स्टेट सिंबल्स है। ठीक है, यू कैन लीव शमीम, नो बडी स्टॉपिंग यू किड। बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ, नींद जिस जिसको नींद आई है चले जाएं, चिल चिल, बाय शमीम। अच्छा आगे। A student investigates the reaction of large pieces of calcium carbonate with dilute hydrochloric acid. The hydrochloric acid is in excess, right? If hydrochloric acid is in excess, you'd realize that this calcium carbonate solid, this would disappear. So you, the first observation would be that the solid would disappear, and obviously this is acid, so that's aqueous, and H2O is a liquidarino। खत्म सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। Describe a test for aqueous iodines against add acidified silver nitrate। Now I'm gonna write simply, right? Instead of saying add acidified nitric acid and followed by silver nitrate, I'll just write acidified acidified AgNO3, which is what AgNO3 नाम लिख देता हूँ, silver nitrate। एसिडिफाइड का मतलब यही है कि आपने इसमें क्या डालें, HNO3 एक्वस है। और इधर मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, AgNO3। खुश। अच्छा, व्हाट आर दी ऑब्जर्वेशंस?
AgNO3 क्यों नहीं लिखा? मेरी मर्जी, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ना, बजाय ये कि मैं ये लिखूं कि ऐड एसिडिफाइड नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय, देखिए ऊपर मैंने ऐसे ही लिखा है, ऊपर मैंने लंबा लिखा है तरीके से लिखा है, नीचे मैंने छोटे तरीके से लिखा है, वो आपकी मर्जी है जिस तरीके से लिखना है। ये देखिए ऊपर मैंने लिखा है एसिडिफाई विथ दिस फॉलोड बाय दिस। 3 क्वेश्चंस अभी तक हो गए सर, और भी करें। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? यू रियलाइज दैट द सिल्वर आयन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द आयोडाइड आयन, and that's going to give you AgI. That's the ionic equation. And what's the observation? The observation is a yellow PPT. PPT नहीं लिखना, precipitate लिखना है। PPT is wrong। खत्म। लाइट येलो प्रेसिपिटेट लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हो, लाइट येलो प्रेसिपिटेट लिख लो। अच्छा वैसे येलो लाइट येलो लिखने का, अच्छा चलो लाइट येलो लिख सकते हो, लिख लो। लाइट येलो भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। जी मिर्ज़ा साहब, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, बस खत्म। अच्छा वैसे एक इक्वेशन बैलेंस कराओ। सर AgI क्या येलो होता है? सुलेखा मर्ती की औरत। हाँ जी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी बिल्कुल। सर अगर PPT लिख लिया तो मार्क्स डिडक्ट होंगे? यस एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। ये सवाल करो, ये बैलेंस कर लूँ आप लोगों के लिए, चलो जो बच्चा ये बैलेंस करेगा उसको 10 रुपए का इनाम। हाँ जी, करो इसको बैलेंस। मिल गया था सरे राह चलते चलते। सर इक्वेशन बैलेंस करवा दें, करो ना, खुद कर लो। यार अब ये सवाल भी करना पड़ेगा फिर, शिट। चलो ये वैसे आप बैलेंस कर लो, कर मैं नहीं कर रहा, आप लोग कर लो ऐसे बैलेंस। Absolutely not. What absolutely not? Sir, I am definitely registering for the past paper session. Awesome. Thank you so much. Thank you जी। सही है। वो एक गाना था लोगन पॉल का, वो जो था, हेल्प मी हेल्प यू। तो सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अब इस्लामाबाद में कोई प्लान बना सकते हैं इफ्तारी का? बना लेंगे इफ़ देर आर मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से मेरे कम स्टूडेंट्स होते हैं, 5 6 7 ही होते हैं, ज़ाहिर कराची लाहौर पेशावर इधर से होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद से बच्चे अगर बढ़ जाएँ, 10 12 बच्चे हो जाएँ, चले जाएंगे जिधर आप चाहें। मैं इधर रिसेंटली गया था TLT, एप्टवाद से तो बहुत सारे हैं। TLT में गया था रिसेंटली, द लॉस्ट ट्राइब, वो बड़े मज़े का खाना था, उधर चले जाएंगे इफ्तारी के लिए हैं। और या फिर रोस्टर्स इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, उधर स्टेक्स हैं, मिल के खा लेंगे सारे। व्हेन मेरे इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स बढ़ जाए ना, मशहूर हो जाऊँ इफेक्टिवली, फिर चले जाएंगे। कोई मुझे तो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं बिजी होता हूँ। आई एम इन दी ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 2 AM to 1 AM ऑन नॉर्मल डेज। अभी तो रमज़ान चल रहा है तो हमारी ऑफिस टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 AM to 3 PM। तो 8:30 AM वैसे है, हाँ। सर एक गाना हो जाए। ओ नहीं सर, एबटाबाद के साथ तो आपकी यादें हैं। आई लव यू गाइस एबटाबाद वाले, आई लव यू गाइस, बस कुछ 2 3 लोगों का इशू है। सर वैसे टीचिंग इज अ साइड क्वेस्ट, एब्सोल्युटली सालेहा। बाय प्रोफेशन, मैं तो पहले भी बताया, आई वर्क एट PwC, यू कैन सर्च इट अप। PwC इज वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। मुझे नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ मुझे नहीं है ज़रूरत, लेकिन इट्स पैशन है, इट्स माई पैशन, इट्स माई हॉबी। आई जस्ट वांट टू इन्फ्लुएंस। बाय प्रोफेशन अ सिंगर, पार्ट टाइम टीचर। सर एबटाबाद आए इंशाल्लाह, चक्कर चक्कर आए सर, पेशावर में मीटअप कर लेते हैं किसी दिन। ज्यादा यादें रूट्स के उन 2 बच्चों के साथ हैं। यार उन दोनों को भी मैंने छोड़ दिया था, उनको मैंने कहा तो था कि बजाऊंगा, लेकिन छोड़ इसलिए था माई मॉम सेड के जैसे भी बच्चे हों देर स्टिल किड्स। आई डिस्कस्ड इट विद माई मॉम। वो बिल्कुल शुरू में वो दो दो तीन बच्चे थे, तो आई डिस्कस्ड इट विद माई मॉम, माई मॉम लाइक यार देखो, बच्चे जैसे भी हो ना, जो भी तुमने सजा देनी दे दो, लेकिन फ्यूचर किसी बच्चे का ना खराब करो, जो मर्जी वो करें। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खामोशी से बात ही इधर उधर कर दी, मैं कहा, चल सही है। पहले भी ऐसे था, अम्मी की वजह से छोड़ा था, अब भी अम्मी की वजह से छोड़ा था सर, अब शरीफ हो गए हैं वो, उम्मीद है। दो मेरे दोस्त हैं सर, वो 2 मेरे दोस्त हैं। गुड कंपनी मैन, गुड कंपनी।
सर अच्छा मैं रिकॉर्डिंग तो पॉज़ करूँ ना, आपके साथ गपशप लगा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में तो ना